Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all in Shri Ram Public School online classes. As today we are going to start with a new topic, that is new social and political groups. Till last lecture we have studied about the history, historian and their sources. What are their sources of study, through which we come to know about how they kept the records, which is useful for us to compare nowadays. Now we're going to see that what the social life they were surviving and what the political system they were having, because that time there was no election was happening, right? The study of the 1000 year between 700 to 1750 is a huge challenge to historian, largely because of the scale and variety of the development. उस टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, साथ ही साथ कई वेराइटीज़ उनको देखने के लिए मिली थी जो उनके सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को अफेक्ट करती है. Is a huge challenge for the historian, largely because of the scale variety of the development occurred during this period. At the different moment in this period, new technologies made their appearance, like irrigation, wheel in irrigation, spinning wheel and weaving, and the firearms in the combat. A new food and the beverage arrive in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, teas and coffees. इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर धीरे धीरे लोगों ने इतना इन्वेंशन कर दिया था कि उनके फूड आइटम में जो कि हंटिंग पे जनरली डिपेंड रहते थे, अब वो टी, कॉफ़ी, जूट इन सारी चीज़ों का सोर्स कर चुके थे. तो उनके सर्वाइवल का, उनके लाइफ जीने का जो साइकिल था, उनका सर्वाइव करने का जो तरीका था, खाने पीने का, कपड़े पहनने का, हर एक चीज़ धीरे धीरे चेंज हो गया था. तो इसकी वजह से हिस्ट्री में बहुत से चेंजेस देखने मिले. Remember that all these innovative new technologies and crop came along with the people who brought other ideas with them as well. As a result, this was the period of economic, political, social and cultural changes. इसी को कहा जाता है political, social, cultural changes. You will learn about the same in 5, 6, 7 chapter. This was also the period of great mobility. Mobility का मतलब होता है movement from one place to another place by the people in research of food and surviving of their life. इसका मतलब इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे थे, जैसे कि आज भी होते हैं लोग जॉब वगैरह करने के लिए, राइट. A group of the people travel long distance in search of the opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibility for the people to carve the fortune. One group of the people who become important in this period were the Rajput. जो उन ग्रुप का लीडर होता था उसे राजपूत कहा जाता था. A name derived from the Rajputra, the son of the ruler. Between the 8th and 14th century, the ruler term was applied more generally to group the warriors who claim the क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. जो जनरली जो राजपूत होते हैं उनको हम लोग क्षत्रिय मानते हैं, जैसे आज ठाकुर लोग को कहा जाता है. द टर्म इंक्लूडेड not just as a rulers and the chieftains, but also the soldier and the commander who serve in the army of the different monarchs all over the subcontinent. इसका मतलब ये सिर्फ रूल आउट नहीं करते थे, बल्कि ग्रुप के लोगों की रक्षा करना, उनके प्राणों की रक्षा करना, उनके मान सम्मान की रक्षा करना और काबिले में उनको बचा करके रखना. A chivalry code of conduct, extreme the valor and the great sense of the loyalty were the quality attributed to the Rajputa by their poet and the bards. Other group of the people such as the Maratha, Sikh, Jat, Ahom, कायस्थस, द कास्ट ऑफ द स्क्राइब एंड सेक्रेटेरियस, हो ये अलग अलग जात है, ठीक है, जो उस टाइम ये सारे अलग अलग जात थे जो उस टाइम से ही डिवाइड होकर के अपने यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे. थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअली क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर. धीरे धीरे हमने ये भी देखा कि किस तरह से वो लोग जंगल को ख़त्म करके खेती करना शुरू कर दिए थे. A changer faster and the more complete in some area than the another. Changes in their habitat forced many forest dweller and migrate. Others started tilling the land and become the peasant. This new peasant group gradually began to influence the regional markets, chieftains, priests and monasteries and the temples. यानी कि धीरे धीरे ये लोग मार्केट बनाने लगे, मंदिर बनाने लगे, एक काबिला इन्होंने बनाना स्टार्टअप कर दिया. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये लोग धीरे धीरे सोसाइटी बिल्डअप करना चालू कर दिए थे. Others started tilling the land and become the peasant. This new peasant group gradually began to be influenced by the regional market. They become the part of the large complex societies and were required to pay the taxes and offer the goods and services to the local lords.
एज अ रिजल्ट द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सोशल डिफरेंसेस एमर्ज अमंग द पीजेंट, यानी इस तरह से धीरे धीरे उनके अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट हो गया। सम पोसेस द मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर ऑल्सो कैप द कैटल, कुछ लोग खेती वगैरह करते थे, कुछ लोग पशुपालन करते थे। द सम कंबाइंड द आर्टिशन, कुछ लोग आर्टिशंस वर्क करते थे, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक्स हो गए, ये अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन उस टाइम पे अवेलेबल होने लगे। एज द सोसाइटी बिकम द मोर डिफ्रेंशिएटेड द पीपल वेयर ग्रुप इनटू द जातिस एंड सबकास्ट, धीरे धीरे लोग जात में बट गए और अपने जात पात के हिसाब से वो लोग ग्रुप बना करके रहने लगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैकग्राउंड देयर ऑक्यूपेशन यानी काम करने का तरीका वो भी चेंज हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपका काम है मंदिरों में पंडिताई करना, अगर आप लोहार है तो आपका काम है लोहे से रिलेटेड काम करना, आप कुम्हार है तो आपका काम है मिट्टी के घड़े बनाना। इस तरह से उन्होंने जात के हिसाब से ऑक्यूपेशन को भी डिवाइड कर दिया था। रैंक वेयर नॉट फिक्स परमानेंटली, द वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर, लेकिन इसमें ये डिसाइडेड नहीं था कि कौन सी जात ऊंची होगी कौन सी जात छोटी होगी। इन्फ्लुएंस द रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ द जाति, द स्टेटस ऑफ द नेम जाति कुड वेराई फ्रॉम एरिया टू एरिया, इस जाति का मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग था। जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट देयर मेंबर्स, यानी ये जात के लोग डिसाइड करते थे कि उनके लोग आपस में कैसे रहेंगे। जैसे मुसलमानों में ये डिसाइड किया गया कि जैसे लड़कियां होती है वो गुरखा पहनेंगी, लड़के जो होंगे वो टोपी पहन के नमाज करेंगे। हिंदू ब्राह्मण में ये कहा गया कि ये लोग शास्त्र पढ़ेंगे। वैसे हर एक जात में इन लोगों ने उनके जीने खाने के तरीक़ों के साथ ही साथ उनको कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं ये भी डिसाइड कर दिया। दिस रेगुलेशन सम एरियाज ऑफ द जाति पंचायत, बट द जातिस वेयर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। सेवरल विलेज वेयर गवर्न बाय द शिफेंस टुगेदर, दे वेयर ओनली द स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट, यानी इस तरह से इन्हें अपने धर्म गुरु अपने जात गुरु को फॉलो करके उस सोसाइटी उस ग्रुप में रहना होता था। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि 700 सेंचुरी से लेके 1750 सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस हुए। लोगों ने सोसाइटी बनाया, जात पात में लोग बटे ग्रुप में, इन लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, आर्टिशंस वर्क स्टार्ट किए, यानी बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले। सो टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर ओनली स्टूडेंट, इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।